welcome to the channel P3 Talks, Perceive, Practice and Prevail, an online learning platform for complete SSB guidance and current affairs. So in the previous video, we had discussed about self-description part 1. We saw how to write a perfect self-description. Also, we had discussed several domains that you should be touching upon when you are talking about your parents. You can find the link to this particular video in the description box given below. In today's video, we're going to continue with self-description. We're going to talk about part 2 of this video, where we are going to see what are the areas that you should be touching upon when you're talking about your friends or your teachers / employer, or when you are discussing what is your self-opinion. And lastly, we're going to talk about the question, that is, what are your areas of improvement. Before we move forward, one important thing. When you are sending me your queries or your answers to certain TAT pictures, WAT or any interview questions or self-description, please do not forget to attach your PIQ form, because if I have an idea of your PIQ form, then I will be able to give you better feedbacks. So let us talk about the second question of self-description, that is what your friends think about you. So when we talk about friends in general, we imagine that friends is a kind of relationship that is very much different from teachers and parents. It is a relationship which is more free, where you feel more comfortable to share your feelings, to exchange your opinions. So let us see what are the areas, what are the domains that you should be covering while you are talking about friends. The first one is, a good friend would be someone with whom you would want to spend more time. So please talk about how your friends spend time with you. Do you like spending time with them? You can give various examples also, like traveling, doing adventurous activities together, group studies, or playing certain games together, or doing anything of your own choice. Second thing, everyone likes a person in their group, in their friend circle who is fun loving, जिनके साथ बात करके, जिनके साथ कोई भी एक्टिविटी करके आपको मज़ा आता है, या फिर एक ऐसा फ्रेंड आपका जो हो जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है. तो इफ़ यू आर द पर्सन जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है एंड योर फ्रेंड्स अप्रिशिएट दैट, उनको बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके, आप जोक्स क्रैक करते हैं, यू कैन ऑल्सो मैंशन दैट इन योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट एस्पेक्ट इज ट्रस्ट वर्दीनेस. फ्रेंड्स के बीच में ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इफ़ यू आर द पर्सन जिसको आधी रात को भी फ्रेंड्स फ़ोन करके आपसे हेल्प मांगने में कंफर्टेबल फील करते हैं, यू कैन ऑलवेज मेंशन अबाउट दिस. नेक्स्ट थिंग इज़, फ्रेंडशिप इज़ वेयर, जहाँ पे आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं. इट कम्स नेचुरली टू यू. यू फील कंफर्टेबल शेयरिंग ऑल योर वरीज विथ योर फ्रेंड्स. इफ दैट इज़ द सीन विथ यू, you can always mention that your friends feel comfortable sharing problems with you. Next domain that you can talk about is goal orientation. नॉर्मली ऐसा होता है फ्रेंड सर्कल में, एक कॉमन गोल होता ही है कि हमें साथ में ये करना है. तो यू कैन ऑलवेज मेंशन अबाउट दैट. आप डिफेंस एस्पिरेंट है, आप बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं कि हम साथ में ये डिस्कस करते हैं कि हम साथ में जाएंगे. दोनों ही इक्वली मोटिवेटेड हैं अपने गोल को पाने के लिए. ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ गुड लिसनिंग स्किल्स इन फ्रेंडशिप. यस, आप अगर ऐसे एक फ्रेंड हैं जो बैठ के पूरी बात को ध्यान से सुनते हैं, पूरी प्रॉब्लम को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, देन अपने फ्रेंड की हेल्प करते हैं, यू कैन ऑलवेज मेंशन दिस. नेक्स्ट, फ्रेंड्स वो होते हैं जो अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में हर तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं. तो इफ़ दैट इज़ द केस, यू कैन ऑलवेज मेंशन दैट. देन आपके फ्रेंड्स क्या आपको इतना मेच्योर समझते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आते हैं, आपसे एडवाइस मांगने के लिए आते हैं? इफ़ येस, देन यू कैन मेंशन दैट. नेक्स्ट इज़, एक अच्छा फ्रेंड वो होता है जो हमेशा आपकी तारीफ़ ही ना करे, आपको अपने नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बताए, आपके मिस्टेक्स के बारे में भी बताए, एंड उनको करेक्ट करने में आपकी हेल्प करे. इफ़ दैट इज़ द सिनेरियो, डू मेंशन अबाउट दैट. ऑल्सो फ्रेंड्स वो होते हैं जो एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे के टच में रहें. इवन इफ़ आपने स्कूल चेंज कर ली है और आपका पुराना कोई फ्रेंड है, तो आप फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू क्या आप उनके टच में रहते हैं? डू यू एक्चुअली रिमेंबर द टाइम दैट यू हैव स्पेंड विद देम? यू कैन. सो वी डिस्कस्ड फ्यू डोमेन्स दैट यू कैन यूज़ इन योर आंसर, बट इनके अलावा भी बहुत सारे और एरियाज़ हो सकते हैं. प्लीज़ सिट बैक एंड think about your friends, remember all the incidents, all the happenings that have happened in your life, all the good moments, all the bad moments, and then write about it. So here I am giving you few
sample self description. Again, please do not copy, write your own. I am just giving these samples so that you get an idea how to actually write them. Sample self description 1. My friends like my helpful and honest behavior. They think that I am friendly and can help them anytime and thus discuss with me all their joys and sorrows. They believe in me and feel that I am trustworthy. They like me for my commitment in any given task. They feel that I am a simple and cool person for which they like to spend more time with me. Description 2. My friends think that I am very lively. They always take my advice on important issues. We always discuss our future plans. They motivate me that I can achieve whatever I want. They always give me some responsibility in their important family functions. Sometimes there are differences but we talk and come out with positive results. आप अपने अच्छी चीज़ों के बारे में बात करें. ऑल्सो प्लीज़ डू मेंशन कि कौन से एरियाज़ है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके फ्रेंड्स आपको इम्प्रूव करने के लिए बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है तो यू कैन मेंशन दैट माई फ्रेंड्स always tell me that I am very talkative, I talk a lot. Okay, now let's move on to the next question, that is what your teachers think about you. Let us see what are the areas that you should be touching upon while answering this particular question. First expectation of a teacher from a good student would be that he or she is well behaved in the class. Okay, you can mention about that. Second thing जो वो expect करेंगे वो है punctuality. आप क्लास में टाइम से आ रहे हैं, स्कूल पे टाइम से आ रहे हैं, होमवर्क टाइम से सबमिट कर रहे हैं, ऑल दिस थिंग आप इसके बारे में मेंशन कर सकते हैं. ऑल्सो स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. आपने किसी में कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन अगर होल्ड करी है, अगर आप क्लास मॉनिटर भी रहे हैं, तो आपने एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की भूमिका निभाई है अपने स्कूल लाइफ में. तो यू कैन ऑलवेज मेंशन अबाउट दैट योर टीचर्स गेव यू सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिलाइड कि आप वो काम समय पे कंप्लीट करेंगे. अनदर अप्रिशिएटेड क्वालिटी इज़ कि आप हार्ड वर्किंग हैं या नहीं हैं. अगर आपके टीचर्स को फील होता था कि आप हार्ड वर्किंग हैं, अपना टाइम पे आप काम करते थे, पूरी मेहनत करते थे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए और बाकी इवेंट्स में भी आप पार्टिसिपेट करते थे, देन ऑब्वियसली यू आर ए हार्ड वर्किंग पर्सन एंड यू कैन ऑलवेज मेंशन दैट. बट प्लीज़ डू रिमेंबर यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन. आप यहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते हैं बिकॉज आपकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो ऑलरेडी TAT, WAT, SRT में निकल के आ चुके हैं. एंड वॉट एवर यू आर राइटिंग योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन इट हैज़ टू मैच विथ योर TAT, WAT, SRT. एंड इफ़ यू स्टार्ट लाइंग इन योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन, आप झूठ लिखना स्टार्ट कर देंगे, इट विल नॉट मैच एंड सेलेक्ट होना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. Another area that you can touch upon is being respectful. Were you the student जो सारे टीचर्स की, इवन सारे स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करते थे? तो यू कैन ऑलवेज मेंशन दैट. अगेन अनदर गुड थिंग अबाउट गुड स्टूडेंट्स इज दे आर ऑलवेज मोटिवेटेड टुवर्ड्स गोल. एंड कहीं ना कहीं टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स पे भरोसा होता है कि येस दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ गोइंग टू अचीव हिज और हर गोल. तो इफ़ यू आर दैट पर्सन तो यू कैन ऑलवेज मेंशन दैट. आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि माई टीचर्स आर श्योर दैट आई एम गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेस. Let us see few sample self description. My teachers say that I am an above average student with good communication skills. They express their happiness when I shoulder any responsibility and appreciate my participation in class and college works. They say that I am one of the best student in the class, but I am naughty sometimes. Let us see another sample. I have always been a good and well behaved student and teachers have always appreciated me for the same. They encourage me to do everything in the best manner. Apart from academics, I am good in co-curricular activities, games and sports. The only time my teachers would disagree with me was when I would bunk classes for going to camps, sports meet or even canteen. तो हमने दो सैम्पल सेल्फ डिस्क्रिप्शन देखे. एक चीज़ हमेशा आप याद रखिए कि आपने ये मान के चलना है कि आपका जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन है वो आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पढ़ा ही होगा. and he is going to ask you cross questions from your self description. So be prepared to answer all the cross question. आपने जो भी लिखा है सेल्फ डिस्क्रिप्शन में, से फॉर एग्जांपल आपने लिखा है कि आपके टीचर्स ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको अप्रिशिएट किया, तो दे कैन आस्क यू इनडायरेक्टली, वो आपसे पूछेंगे कि आपने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस होल्ड करी हैं, देन यू कैन मेंशन अबाउट दिस. एंड सेम चीज़ें आपकी PIQ में भी हैं. आप यहाँ पे लिख रहे हैं
कि आई एम गुड इन को करिकुलर एक्टिविटीज़ और मेरे टीचर्स ये अप्रिशिएट करते हैं, एंड आपने PIQ में कोई करिकुलर एक्टिविटी आपने मेंशन ही नहीं करी है, देन ऑब्वियसली देयर विल बी ए मिसमैच. तो आपकी पूरा साइकोलॉजी टेस्ट, TAT, WAT, SRT, SD, योर PIQ फॉर्म, वॉट एवर यू स्पीक इन योर इंटरव्यू, एवरीथिंग हैज़ टू मैच. एंड एक ही तरीका है सारी चीज़ों को मैच कराने का, एक ही तरीका है कि आप सिर्फ सच बोलें. एंड इफ़ देर आर फ्यू क्वालिटीज़ जो आपको लगती हैं कि आप में नहीं हैं एंड आपको वो लिखनी है सेल्फ डिस्क्रिप्शन में, देन माई सजेशन वुड बी प्लीज़ स्टार्ट डेवलपिंग दैम. देर इज़ नथिंग दैट कांट बी डेवलप्ड. हर एक क्वालिटी डेवलप की जा सकती है अपनी कॉन्शियसनेस से. आप कॉन्शियस हो जाएंगे, अपनी हैबिट में उन चीज़ों को लाएंगे तो डेफिनेटली आप वैसे ही बन जाएंगे. Let's move on to the next question. Next is what is your self opinion? Now इसमें जो areas आप cover करेंगे that would depend from person to person. तो मैं आपको कोई areas नहीं बताने वाली हूँ कि आप ये cover करिए. In general we are going to talk about it. So first thing आप जो कर सकते हैं, जो पेरेंट्स में आपने लिखा है उनमें जो बेस्ट चीज़, बेस्ट क्वालिटी आपको लगती है वो एक उठा लीजिए और वो आप सेल्फ ओपिनियन में ज़रूर मेंशन कीजिए. से फॉर एग्जांपल आपकी बेस्ट क्वालिटी ये है पेरेंट्स की नज़र में कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, तो प्लीज़ डू मेंशन दैट इन योर सेल्फ ओपिनियन, क्योंकि वो भी मैच होना चाहिए, राइट. जो आपके पेरेंट्स को लगता है वो आपको भी तो लगना चाहिए. तो एक वहाँ से उठा लीजिए. सेकेंड इज फ्रेंड्स वाला जो आपने आंसर लिखा है उसमें से एक क्वालिटी आप उठा लीजिए. से फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स को लगता है कि आप सबकी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं, आप अच्छे लिसनर हैं, तो यू कैन मेंशन अबाउट दैट कि आप अपने फ्रेंड्स को इन जनरल आप बहुत ध्यान से सुनते हैं एंड सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो यू कैन मेंशन अबाउट दैट. थर्ड थिंग, टीचर्स वाले आंसर में से एक क्वालिटी ज़रूर उठाइए. से फॉर एग्जांपल आपकी बेस्ट क्वालिटी जो आपको लगती है टीचर्स की नज़र में है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, कि आप अपने आप से खुद को मोटिवेट करके बहुत मेहनत करते हैं अपने ड्रीम के टुवर्ड्स, तो यू कैन ऑलवेज मेंशन दैट. अदर एरिया दैट यू कैन टच अपॉन इज योर मोटिवेशन टू जॉइन डिफेंस. येस डेफिनेटली सेल्फ ओपिनियन में ये बिल्कुल आना ही चाहिए कि आप डिफेंस फोर्सेस के लिए कितने मोटिवेटेड हैं. सेकेंड यू कैन कवर इज सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, यू कैन कवर दैट. हाउ डिटरमाइंड यू आर टू अचीव योर गोल, यू कैन कवर दैट. देन बेसिकली आपने सेल्फ ओपिनियन में अपने स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करनी है और सिर्फ स्ट्रेंथ्स के बारे में, आपने कोई वीकनेसेस नहीं लिखनी है सेल्फ ओपिनियन में, क्योंकि वीकनेसेस का अलग से क्वेश्चन आता ही है. आइदर इट कैन बी लाइक व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, 5 बताइए, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट आर योर एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो वहाँ पे आप लिखना है, यहाँ पे आपने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करने हैं. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक ए डिटेल्ड लिस्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ. एटलीस्ट आई वुड से 15 से 20 स्ट्रेंथ आप अपनी तैयार करके रखिए, बिकॉज सेम क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं इन वेरियस फॉर्म. लाइक फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी वेरी डायरेक्ट कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, टेल मी योर 10 स्ट्रेंथ्स, टेल मी योर 15 स्ट्रेंथ्स, ये पूछ सकते हैं. Another question can be why should I select you? Another question can be why do you think that you deserve to become an officer? Another question can be why do you think that you will become a good pilot? What qualities do you have to become a fighter pilot maybe? So ये जो सारे आंसर्स जो हैं ये आपके जो सेल्फ ओपिनियन वाला जो आंसर आप प्रिपेयर करेंगे उसी में से डिराइव करके आप सारे आंसर्स देंगे. तो माई एडवाइस वुड बी सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड आप करिए व्हाट इज़ योर सेल्फ ओपिनियन. See few sample self description for this particular answer of self opinion. I am basically a kind hearted person and quite sympathetic and sensitive. I never lose an opportunity to help my friends or anyone else. I face all situations bravely and boldly. I am optimistic and ready for any adventurous task. I performed well as a student through my academics and excelled in NCC and sports. Let's move on to the last question, that is what are your areas of improvement. This is a very very important question और इसका जो आंसर है वो आपने काफ़ी स्मार्टली लिखना पड़ेगा. Now I'm not going to discuss the areas that you should be covering because it will depend on your personality and it will differ from person to person. However, I'm going to share few tips. First thing you have to remember is please don't write any weakness that directly contradicts OLQs. तो आपने करना क्या है, अपने सारे वीकनेसेस का एक लिस्ट बनाइए
और उनको ऑफिसर लाइक क्वालिटी से कंपेयर करिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसी वीकनेस है जो डायरेक्टली ऑफिसर लाइक क्वालिटी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, देन आई वुड सजेस्ट उसके ऊपर आप पहले मेहनत करिए। से फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग आई गेट वेरी एंग्री ईजिली। नाउ दिस इज ए वेरी ह्यूज वीकनेस ऑफ योर्स। आप इस पर्टिकुलर वीकनेस को छुपा नहीं सकते हो एसएसबी में, तो आपने क्या करना है, यू टू ट्राई एंड कंट्रोल योर एंगर, एज सिंपल एज दैट। सेकेंड थिंग, इफ यू आर गोइंग टू राइट आई एम ए शाई पर्सन, नाउ अगेन आप ये नहीं लिख सकते हो वहाँ पे, बिकॉज सोशल अडेप्टेबिलिटी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट OLQs ऑफ SSB, एंड ये जो आप लिख रहे हैं आई एम ए शाई पर्सन, ये डायरेक्टली उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो सजेशन मेरा ये रहेगा, पहले आप अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम करिए, एंड व्हेन यू आर श्योर कि अब मेरे में ऐसी कोई वीकनेस नहीं है जो OLQs को डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करे, देन स्टार्ट राइटिंग योर सेल्फ डिस्क्रिप्शन। When you become conscious about yourself, when you become aware कि this is the kind of person I want to become, trust me, आपके लिए बहुत easy होगा अपने weaknesses को overcome करना। तो आप ऐसी कोई बड़ी बड़ी weaknesses नहीं लिखने हैं आपने इस। Now next thing you have to remember is, आप जो भी weakness लिख रहे हैं जो OLQ contradict नहीं कर रही है, उसमें भी आपने ज़रूर mention करना है कि आप उसको कैसे overcome कर रहे हैं, ठीक है। वो आपने बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ लिखना है। से फॉर एग्जाम्पल यू आर सेइंग दैट योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट दैट ग्रेट, आपको उसमें इम्प्रूव करना है। तो आप उसमें क्या कर रहे हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर्स और स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर और प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग, रिकॉर्डिंग वॉइस, वट एवर इट इज़, प्लीज़ डू मैंशन दैट। So we have discussed all the important questions related to self description. Now let us see few tips that you should keep in your mind while you are writing self description. First thing, आपने जेन्युइनली अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर्स का फीडबैक लेना है, बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू राइट देयर ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट यू, तो डेफिनेटली यू हैव टू स्पीक टू देम। सेकेंड जो फ़ायदा आपको इससे मिलेगा, आपको कुछ ऐसी चीज़ें अपने बारे में पता चलेंगी जो आपको पहले से नहीं पता थी। थर्ड थिंग, आपको कुछ फीडबैक्स मिलेंगे उनसे, कुछ ऐसे एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट मिलेंगे जिन पे जेन्युइनली आप काम कर सकते हैं, एंड ये सारी चीज़ें आप अगर करेंगे तो इट विल बी ए वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स यू बिकमिंग सेल्फ अवेयर, एंड द मोर सेल्फ अवेयर यू बिकम, ईजियर द SSB वुड बी फॉर यू टू क्लियर। सेकेंड पॉइंट दैट यू टू रिमेंबर इज, जब आप आंसर लिख रहे हैं आप अपने मेजर इंसिडेंट्स को याद करिए विद फ्रेंड्स, विद पेरेंट्स, विद टीचर्स, एंड उन इंसिडेंट्स में आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया था। कोई ऐसी सिचुएशन भी आई होगी जहाँ पे ये लोग आपके ऊपर बहुत प्राउड फील किए थे, और ऐसी भी सिचुएशन आई होगी जहाँ पे दे वर नॉट सो प्राउड ऑफ यू। तो दोनों ही सिचुएशन में आपकी कौन सी मेजर क्वालिटीज़ वहाँ पे दिख रही हैं, या फिर कौन से आपकी वीकनेसेस हैं जिनकी वजह से आपने कोई मिस्टेक्स की हैं। डू थिंक अबाउट देम। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, आपने थ्रू आउट योर SSB प्रिपरेशन एंड वट एवर आंसर यू आर राइटिंग, यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड रियल। ओके, नेक्स्ट थिंग, आप अच्छे से 5 ड्राफ्ट प्रिपेयर करिए, एंड हर एक ड्राफ्ट को कुछ कुछ टाइम बाद आप रिव्यू करिए, तो यू विल सी कि आपने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए हैं और कुछ पॉइंट्स आपने ऐसे ही लिख दिए हैं। तो आप 5 ड्राफ्ट, अगर जो लास्ट में आपका ड्राफ्ट बनेगा उसको आप याद करिए। सेकेंड थिंग, आप एक अच्छी और सिंपल लैंग्वेज यूज़ करिए ताकि आप एक बेहतर तरीके से अपनी क्वालिटीज़ को वहाँ पे प्रोजेक्ट कर पाओगे। आई होप सेल्फ डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड सारे डाउट्स अब आपके क्लियर हो चुके हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन स्टिल रीच out to me on Instagram. Thank you so much for watching the video. If you have any questions related to SSB preparation, you can reach out to us on the Instagram handle, that is P3_talks. If the session was helpful for you, please hit the subscribe button. Also do share it with your friends. Thank you.